Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Today date is 13 September 2021, and I will teach you chapter number 11. Today we will start a new chapter. In the previous video we have completed chapter number 10, that is name of the chapter communicable diseases. So in the previous video we have completed the question answer, short question answer and long question answer of the chapter communicable diseases. So in today video, student, I will start a new chapter. Name of the chapter is India, our country. India, our India, our country. So this we will discuss in this chapter. So when we are talking about our country India, so student, India is the seventh largest country in the world. Okay. So, and as we know that India is the seventh largest country in the world. So as we know that the earth is divided into different continents. Okay, India is the largest seventh country in the world, and as we know that our earth is divided into different continents, and the continents of the earth are, you want to note down, you can note down. Okay, continents of India are Asia, okay, North America, South America, एक मिनट, North America, South America, Antarctica, then Europe, and Australia. ठीक है. So when we are talking about the student continent of India, continent, see these are huge pieces of land. ठीक है, these are the huge pieces of land. So how many continents are on our earth? That is 7 continents: Asia, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. And in which continent our country is in? So our country is in the continent of Asia. Okay, so our country is in which continent? That is in the Asia continent. Okay, so our country is in which continent? That is the Asia continent. Okay, so what are these continents? These are huge pieces of land which are present on the earth, and there are 7 continents. Okay, now next, India is the largest 7th country in the world, and India is in which continent, student? That is the Asia continents.
Okay, so how many other countries are also present in Asia continent? That is 48 countries. Total number of countries which are present in Asia continent, that is 48 countries, and Asia continent is the largest continent. Out of these seven, is it clear? Out of these seven continents, the Asia is the largest continent, and our country India is the seventh largest country in the world. Okay, now after that, now we see, if you see the map, so student, the top direction is always north, is it clear? And top direction is also always shown on the map is north, and bottom is the south. I am writing in shortcut, I am not writing the full spelling. N stand for north and S stand for the south. So south is at the bottom, is it clear? So here this hand is a left hand, so this is your west direction. West is towards the left, and east is towards the right hand. Is it clear? So when you will observe the map, student, the direction which is shown on the top of the map, that is always north direction. Is it clear? And at the bottom it is south. West is the left hand side direction is the west, and the right hand direction is the east. So this is the directions which are present on the map. I hope up to this is very clear to all of you that our country India is in which continent? That is in Asia continent, and Asia continent is the largest continent. Okay, and how many countries are present in this Asia continent? That is 48 countries are present in the Asia continent. Okay, and what is the position of our country? So in the world, so the position of our country in the world is 7th. Now let us see from the west to east. Now we will see the area of our country, west to east, how much it is expanded. It is west to east, it is nearly 3000 kilometer, west to east. From left to right, you already I explained you the direction. Topmost is the north, bottom is the south, left hand side west, and right hand side east direction. That is the reason I explained you direction first of all. Okay, so from west to east it is nearly 3000 kilometer. Okay, and north to south, how much it is expanded? North to south. Okay, north to south it stretches. कितना फैला हुआ है? स्ट्रेचेस मतलब कितना फैला हुआ, कितना एक्सपेंडेड है. तो इट स्ट्रेचेस about 3200 kilometer. Is it clear? And next important thing is it has a land boundary. If you want to note down, otherwise you will underline these things in your book. It has, because many short questions are asked from these headings. What is the, how much India has expanded from west to east? 3000 kilometer. How much India is expanded in north to south? That is 3200 kilometer. It has a land boundary of how much kilometer? It has a coastal line boundary of how much kilometer? So one word questions are asked from this point. That is the reason I am writing this on the board. And if you don't want to write separately in the rough copy, then you underline it in your book. It has land boundary. It has a land boundary of 15,200 किलोमीटर. ठीक है, and a coastal line of over
ऑफ ओवर 6500 किलोमीटर। और अगर आइलैंड्स को इंक्लूड कर ले तो तब ये कितना हो जाएगा 7500 किलोमीटर। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। नाउ वी सी हाउ मच इट इज एक्सपेंडेड इन different direction. So from west to east it is nearly 3000 kilometer, okay, and from north to south it is stretches about 3200 kilometer. It has a land boundary of 15000 kilometer. Land boundary means जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके संग इसकी लैंड बाउंड्री 15200 किलोमीटर है। और कोस्टल लाइन जो वाटर के रास्ते जो बाउंड्री है बेटा वो डेट इज 6500 किलोमीटर है। और अगर हम लोग आइलैंड्स को इंक्लूड करते हैं देन इट बिकम 7500 किलोमीटर। इज इट क्लियर? देन इट बिकम 7500 किलोमीटर। सो नाउ आफ्टर दैट the important thing which we study about our country is that the number of states and the union territories of our country. So okay, now and थोड़ा सा ये भी ओरली बता देते हैं। अभी जो मैंने जस्ट आपको बताया कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी बताई थी 15200 किलोमीटर। इट मींस द बाउंड्री विद द नेबरिंग कंट्रीज। सो इंडिया नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स, इनके संग क्या है वाटर बाउंड्रीज है। ठीक है, so these are the neighboring countries by which we having a boundaries, that is the Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये सब के संग क्या हमारी लैंड बाउंड्रीज है। ठीक है, इन सारी कंट्रीज के संग हमारी क्या है बेटा, इन सारी कंट्रीज के संग हमारी लैंड बाउंड्रीज है। ठीक है, सो इन कंट्रीज के संग लैंड बाउंड्री है। दिस क्वेश्चन विल आस्क इन योर book question answer also. What are the neighboring country of India? That is Nepal, China, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, श्रीलंका, म्यांमार, जो इसका पुराना नाम क्या था वर्मा था। ठीक है, एंड अफगानिस्तान। ठीक है, ये सब क्या है, इन सब की क्या है लैंड बाउंड्रीज है इन कंट्रीज की, हमारे कंट्री की। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक विच विल कवर इन दिस दैट इज योर states and union territories. Okay, so in our country we have now 28 states and 8 union, ठीक है, 8 क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं। we have 28 states and 8 union territories। ठीक है, अब देखो पहले 29 स्टेट्स थी, अब 29 से 28 हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी अब किस में रख दिया बेटा, यूनियन टेरिटरीज में रख दिया। ठीक है, तो आप बहुत बच्चे अक्सर बोलते हैं, वो पता नहीं गूगल पे पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, नहीं सर स्टेट्स तो 9 है, यूनियन टेरिटरीज 9 है। ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी को 9 बोलते हैं, स्टेट्स को 28 बोलते हैं। तो बेटा तो पहले 29 स्टेट थी, दैट इज योर राइट आंसर, बट इन प्रेजेंट टाइम 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरीज में रख दिया गया है। ठीक है, नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट्स। स्टेट्स देखो बेटा, जैसे जितनी भी स्टेट्स होती है सबके अपने अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसको हेल्प करने के लिए उसके संग अदर मिनिस्टर्स होते हैं, दे लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट। जैसे यूपी है, यूपी के चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ हिज स्टेट्स। तो इसी तरह हमारे कंट्रीज में 29 स्टेट है। अब ये जब पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, ये तब ये चीजें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि स्टेट में कौन कौन हाउसेज होते हैं स्टेट में और कैसे लीडर उसमें चूज किए जाते हैं। तो ये नेक्स्ट जो अभी चैप्टर्स आएंगे, अपकमिंग चैप्टर्स जो हैं उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ सारी चीजें हमने बहुत शॉर्टकट में
डिस्कस करनी है। ठीक है, स्टेट्स का भी अभी हाँ ये जान लो बेटा आप लोग कि स्टेट्स क्या होती हैं, सारे स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं। हम लोग यूपी में रहते हैं इसलिए हम यूपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के इस समय चीफ मिनिस्टर हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, दैट इज योगी आदित्यनाथ। So in this manner there are 20 states, 28 states in our country, and all the 28 states have their chief minister। जो स्टेट के जो मिनिस्टर हैं जो सारी स्टेट्स के अपने अपने मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, ऑल द स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो उनका हेड होता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द चीफ मिनिस्टर। अब देखो यूनियन टेरिटरीज, इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। देखो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी पुट दिस टू द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज में इनको रखने का कारण ये था, या तो ये साइज में, ठीक है, इनका क्षेत्रफल मतलब इनका साइज जो था वो ज्यादा नहीं था। ठीक है, या तो इनका कल्चर डिफर कर रहा था बाकी स्टेट से। अगर इन स्टेट के लोगों को अदर स्टेट में हम रख देते तो हो सकता है ये उनके संग इनका नहीं हो पाता ठीक से। ठीक है, दैट इज द रीजन इनके यूनियन टेरिटरीज बनने का रीजन ये भी है, या तो इनके साइज जो था, ठीक है, दैट इज लेस। ठीक है, वो लेस था, और दूसरा क्या है, कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, और एक पॉलिटिकल रीजन भी था कि इनको यूनियन टेरिटरीज में रखा गया। तो दैट ऑल आर द रीजन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। लेट्स स्टार्ट विद द दिल्ली। ठीक है, एक दिल्ली, दिल्ली भी आपकी क्या है बेटा, दिल्ली इज आल्सो योर यूनियन टेरिटरी। देखो दिल्ली क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री की कैपिटल इंडिया। अगर हम कैपिटल को किसी स्टेट के संग जोड़ देते तो होता कि फिर वो ऐसे ये कैपिटल है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल द कंट्री। ठीक है, हमारे कंट्री की कैपिटल ही दिल्ली है, तो ये तो पूरे हमारी कंट्री इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर हम इसे किसी एक स्टेट के संग कर देते तो ये उसी स्टेट का ज्यादा करती। तो दैट इज द रीजन दिल्ली को हमने सेपरेट यूनियन टेरिटरी इसलिए रखा क्योंकि यहाँ जो मेन गवर्नमेंट बनती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार है। अब अंडमान निकोबार जो है बेटा आपका दिल्ली, दिल्ली को तो लिख दिया। ठीक है, कैपिटल है हमारी कंट्री की, दिल्ली इज द कैपिटल, कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट वन, दैट सेकंड वन इज अंडमान, सेकंड वन इज अंडमान निकोबार। सो अंडमान निकोबार एंड इट्स कैपिटल इज, इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, सो और ये कब बनी थी, 1956 में, 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी में रखा गया था। ठीक है, अंडमान निकोबार ये क्या है, आइलैंड है। आइलैंड किसको बोलते हैं बेटा, विच द लैंड विच इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड। ठीक है, मान लो ये जमीन का टुकड़ा है बीच में, और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके चारों तरफ वाटर है, ये बीच में जमीन का लैंड है, टुकड़ा है। तो दैट इज द रीजन। अब देखो इसे क्या बोले हम लोग, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी यूनियन टेरिटरी में रखने का रीजन ये था कि इनकी, इन दोनों की किसी भी स्टेट से लैंड बाउंड्री नहीं थी, क्योंकि ये क्या है, लैंड का ऐसा हिस्सा है जिसके चारों तरफ क्या है, वाटर है। तो इसलिए इसे किसी और स्टेट के संग नहीं जोड़ा गया, क्योंकि इनकी लैंड बाउंड्री थी ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन अंडमान निकोबार एंड इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, और 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी में रखा गया। नेक्स्ट आपका है लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट है लक्षद्वीप। ठीक है, थर्ड वन इज द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, Karavati. Karavati is the capital of Lakshadweep, and in which year it becomes a union territory, that is 1956। और इसका भी यही रीजन है यूनियन टेरिटरी में रखने का, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी आइलैंड है, वाटर, इसके चारों तरफ वाटर है। तो कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिससे इसकी लैंड बाउंड्री है, इसलिए इसको भी उठा के किसमें रख दिया गया, यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी। ओके, और इसकी कैपिटल है पौंडीचेरी, और ये कब बनी, 1962 में। ठीक है, ये कब बनी, 1962 में।
तो यहाँ जानते हो आज़ादी से पहले यहाँ बहुत लंबे समय तक कौन फ्रांस के लोग रहते थे। दैट इज द रीजन इन लोग का जो कल्चर है बाकी लोगों के कल्चर से बिल्कुल डिफर कर रहा था, इसलिए इसको भी यूनियन टेरिटरी में रख लिया। सो टुडे स्टूडेंट वी हैव डिस्कस द 4 यूनियन टेरिटरी। ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अदर यूनियन टेरिटरीज। थैंक यू।